تو وہ جماعتیں جو RSS اور BJP کی پچ پر کھیلتی ہیں اس کی حمایت اور تائید کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نہیں بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے کہ ہماری جدوجہد قربانی سے عبارت ہے. ہماری پوری جدوجہد قربانی سے عبارت ہے اور ہم ملت کے لیے قربانی دیتے ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی بات کبھی نہیں سوچے. یہ بنیادی بات ہے. اب سیکریٹریٹ کی جو مساجد ہیں، بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا آج پہلی مرتبہ، کیونکہ سیکریٹریٹ کی مساجد تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عظیم الشان کارنامہ ہے، جس کی جہد مسلسل کے نتیجے میں سیکریٹریٹ کی مساجد تعمیر ہوئی اور 1 ملین سگنیچرز کیمپین تلنگانہ کے اضلاع میں دیہاتوں میں ہم نے چلائی تھی. مساجد بنائے گئے. میں وہ علماء اکرام جو کانگریس کو جو سمجھیے کہ BRS کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ سیاسی لیڈرز جو ٹوپی پہن کر شیروانی پہن کر عوام میں جاتے ہیں، میری اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی عورت نے مسجد کا افتتاح کیا. بہت اہم نکات رکھ رہا ہوں، ہو سکتا موجودہ سیاست سے اس کا تعلق نہ ہو، لیکن یہ مسلمانوں نے تلنگانہ کے لیے یہ انتہائی اہم بات ہے. ان کے وقار اور ان کی عزت اور ان کے سمان کا مسئلہ ہے، ان کے مذہبی سمجھیے کہ اصولوں کا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دنیا کی کسی مسجد کو ایک نان مسلم عورت بغیر پلو اوڑے ہوئے بغیر کسی احترام کے ربن کاٹ کر مسجد کا افتتاح کرتے ہوئے میں نہیں دیکھا. مسلمانوں نے تلنگانہ کو ان سب سے سوال کرنا چاہیے جو اس وقت وہاں اس افتتاحی تقریب میں موجود تھے. نمبر 1. نمبر 2، یہ خدارا سمجھیے کہ یہ علماء اور یہ مفتی اور یہ سیاسی لیڈر جو اللہ اور رسول کی دعائی دیتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے بات کر لے. کیا مسجد ہاشمی اسی مقام پر بنی ہوئی ہے؟ مسجد ہاشمی کیا اسی مقام پر بنی ہوئی؟ مسجد ہاشمی کی زمین تبدیل کر دی گئی، ایک چھوٹا گنبد کے جیسا مسجد ہاشمی بنا دیا گیا. اور اس سمجھیے کہ مسئلے میں بہت ساری باریکیاں ہیں، حکومت سیکریٹریٹ کو لکھنا، یہ وہ ایشوز کو نہیں اٹھاؤں گا. دوسری سمجھیے بات کہ صاحب مسجد کی شہادت ہوتی ہے اور CM جھوٹ بولتے ہیں تلنگانہ کے مسلمانوں کو، 14.5% مسلمانوں کو، اور مسلم سیاسی جماعت کا سربراہ جھوٹ بولتا ہے، اس حکومت کا ہوم منسٹر جھوٹ بولتا ہے کہ صاحب مسجد پر ڈبریز گرے اور ایک کونا ٹوٹا، جبکہ مسجد کے قرآن مجید اور جانمازوں کے ساتھ اس کو لے جا کر سمجھیے کہ صاحب آپ پھینک دیے. یہ افسوسناک بات ہے. نمبر 3، آلیر انکاؤنٹر کا مسئلہ، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا. نمبر 4، مسجد اقانہ امبر پیٹ کی مسجد. آپ صاحب بہت ایکسس رکھتے ہیں ہوم منسٹر سے. ہوم منسٹر صاحب نے مجھ کو اور میرے ساتھ کے علماء کو لنچ پہ بلایا تھا. بلا کے کھانا کھلا کر میں نے کہا لنچ پہ میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی کے گھر پہ بھائی لنچ کو نہیں آ سکتا. بالکل میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، آف دی ریکارڈ نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھڈی کو ہاتھ لگا کر انہوں نے کہا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں مشتاق بھائی، یہ الیکشن گزر جان دیجیے، آپ کچھ مت کریے، ایک خانہ مسجد تعمیر ہو جائے گی. میں چیف منسٹر سے بات کر چکا ہوں. آپ سوال کریے کہ کیا چیف منسٹر سے محمود علی صاحب بات کرے تو وہ وعدہ وفا نہیں ہوا یا کیا ہوا؟ دوسری بات، وہاں پر شیڈ پڑ رہا تھا ایک خانہ مسجد کا، کوئی MLA کو کسی کو وہاں اعتراض نہیں تھا. مجلس اتحاد المسلمین کے MLA احمد پاشا خادری پہنچے وہاں، راجہ سنگھ بھی پہنچا. اب کیا انڈرسٹینڈنگ سے پہنچا نہیں بولوں گا، وہاں گڑبڑ ہو گئی. آج تک مسجد کا شیڈ پھنس گیا، جبکہ مسجد کا شیڈ پڑ رہا تھا وہاں. کسی کو ہندو سمجھیے کہ آزو بازو رہنے والے ہندو لوگ وضو کے لیے پانی دے رہے تھے.
This is the position. This was the position. मगर समझिए कि साहब अब सियासी खेल खेला गया. अल्लाह इनको देखेगा जो मस्जिदों को बनने के लिए सियासी खेल खेले हैं, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करेगा. एक बात ये याद रख लीजिए. अब उसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन जब समझिए कि उसूल रहा, मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में चेयरमैन भी रहा. यहां पर भी समझिए एक मुस्लिम मेंबर, चाहे वो अलाई पार्टी की रिक्वेस्ट पे हो, वो समझिए मुस्लिम मेंबर समझिए कि रहा पब्लिक सर्विस कमीशन में. आज पब्लिक सर्विस कमीशन बगैर मुसलमान के आप बना देते. आपको हया भी नहीं आती तायद करने वाले ये उलमा, ये मशाकिन और ये सियासी दलालों को. ये साहब मुसलमानों को मिला क्या 9.5 साल में? ठीक है कांग्रेस जीतती या हारती, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह कल के बाद से कांग्रेस का समझिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो जमीन पे जो है वो तब्दील होगा. बिल्कुल मैं दिल से बात कर रहा हूं. और मुसलमान अगर वन साइडेड आ जाता है तो फिर इनको शिकस्त देने में कोई ताकत माने नहीं रही. मुसलमान वन साइडेड अगर पोलिंग करता है और मुसलमान अगर 80% भी पोल कर ले तेलंगाना का, और हम कोशिश करेंगे उसके लिए, 80% मुसलमान भी अगर पोल कर लेता है तो समझिए कि टीआरएस को हराना कोई मुश्किल नहीं. और हम वही समझिए कि उसी पर काम कर रहे हैं और वही काम शुरू होगा कल से इंशाअल्लाह. दूसरी बात साहब, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने किसी मुसलमान को नहीं रखा, उठा के फेंक दिया. 11 वाइस चांसलर, 11 यूनिवर्सिटीज है तेलंगाना, एक सिंगल मुसलमान को वाइस चांसलर नहीं बनाया आपने. एक सिंगल मुसलमान. हया आनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए कि किस जबान से उस जमात की हिमायत करें. उसी तरह आप आ जाइए औकाफ पर. मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करता. पूरे अजला में कौन सा टीआरएस का एमएलए कितनी जमीन खा गया, कौन एमएलसी खा गया, कितने मुसलमान खा गए, अलाई पार्टी के कितने मुसलमान लूट लिए, वो सब नहीं बोलूंगा. हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने ये कहा था कि हुसैन शाह वली दरगाह की जो जमीन 1554 एकड़ जो समझिए कि जमीन है, वो जमीन को मैं वक्फ बोर्ड को वापस कर दूंगा. हम लोअर कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, फलां जीते, सुप्रीम कोर्ट में गया. अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को धप्पा मार के समझिए क्या क्या किया गया नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड हार गया. तो हम सिर्फ एक ही जमीन की बात कर रहे हैं, दरगाह हुसैन शाह वली. आपने वादा वफा किया, दूसरी बातें छोड़ दीजिए. आप क्या क्या देते बोले थे वक्फ बोर्ड को, वो सब बातें. अब उसके बाद समझिए मुस्लिम वेलफेयर मिनिस्ट्री मुसलमानों के पास रही है और मुसलमान एक्सेसिबल रहता है, एक्सेस होता है उसको. आप सबको भी कोई काम की जरूरत पड़ी तो मुस्लिम मिनिस्टर करें, 2 मिनट में आप चले जाते. पहले 5 साल चीफ मिनिस्टर साहब, अब चीफ मिनिस्टर साहब खुद मुसलमानों उनके अपने मिनिस्टरों से नहीं मिले तो मुसलमानों से कहां मिलेंगे. मुस्लिम मिनिस्ट्री उनके पास 5 साल. फिर नेक्स्ट ईयर कोप्पला ईश्वर, वो बेचारे को अलीफ मालूम न बे मालूम मुसलमानों को. मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस कितने हैं क्या है वो नहीं मालूम था उसको. वो तो बोला कि साहब मेरे को समझिए कि साहब झड़े हुए पत्ते करने लाके जो है सो बिठा दिए झड़े हुए झाड़ के नीचे. ये जुमला है उसका कोप्पला ईश्वर का. तो ये कि मुस्लिम मिनिस्टर नहीं रहा. अब देखिए फीस रीइंबर्समेंट का मसला, सबके बच्चे होंगे यहाँ पर. फीस रीइंबर्समेंट के मसले पे हमारे बच्चे एडमिशन ले लिए कि साहब फीस रीइंबर्स हो जाएगी गवर्नमेंट से. फीस रीइंबर्स नहीं हुई. उन्हें बीटेक कर लिया, उन्हें समझिए कि साहब बी फार्मेसी कर लिया. अब आगे एजुकेशन के लिए फीस रीइंबर्स नहीं हुई. कॉलेज ये बोला पूरी फीस दे, 3-3.5 लाख रुपए समझिए बस कोर्सेस के देना है. माँ बाप बिलखते हुए रोते हुए आ रहे हैं सामने. कल की बात है कि साहब बाहर समझिए कि एक लड़की जा रही है, फीस रीइंबर्स नहीं हुई, उसके पूरे सर्टिफिकेट्स मुस्लिम इंस्टीट्यूशन दबा दिया. मैं नाम नहीं लूंगा उसका. बिलख रहे माँ बाप, रो रहे हैं कि साहब फीस रीइंबर्स नहीं हो सका. पैसे कहां से लाएंगे?
जेवरा बेच के पैसे दे रहे हैं फीस के, बच्चों को आगे पढ़ाना है। तो फीस रीइंबर्समेंट स्कीम पर इस समझिए हुकूमत ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हमने कांग्रेस के मुख्तलिफ समझे जो डेलीगेशन दिल्ली से आए, यहाँ के लीडर्स 25 दफ्तर को आए, उनसे एक ही बात कही कि साहब एजुकेशन रेवोल्यूशन आना चाहिए, उसी तरह जो वाईएस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में। और बिला मुबालगा मैं बात कह रहा हूँ, वो एजुकेशन रेवोल्यूशन आना चाहिए और उसी तरह फीस पे करनी चाहिए। आज बिल लग रहे माँ बाप फीस रीइंबर्समेंट, ऐसे नहीं है उनका। बहुत से समझिए कि साहब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कराना चाह रहे थे बच्चों को, नहीं करा सके, बीटेक कराना चाह रहे थे, नहीं करा सके, एमकॉम कराना चाह रहे थे, नहीं करा सके, ड्रॉप आउट हो गए। इस फीस की वजह से उनके सर्टिफिकेट कॉलेजों में फंसे हुए। इस हुकूमत को जरी हया नहीं है, न इनके मुस्लिम लीडर्स को हया है, न समझिए कि साहब अलाई पार्टी को हया है कि साहब बच्चे तड़प रहे, बिल आ रहे हैं। जब मेरे पास कई आए हैं तो उनके पास तो बहुत गए होंगे। तो बहरहाल समझिए मोइनाबाद रेप का भी मसला, मोइनाबाद रेप विक्टिम है साहब, बच्ची एक रेप हुआ था, बीआरएस का लीडर रेप करा था मोइनाबाद में बच्ची को, मधु यादव। उसको बहरहाल उसकी फैमिली को हर महीना हमारे पास से राशन जाता है, हम कमिट करे थे, वो दैट इज डिफरेंट, वो नहीं बोलूंगा। तो ये कि वो समझिए कि जो लड़की है उसके घर पे कोई नहीं गया, रेप हुआ उसकी बहन का, मर्डर, उन्हें सुसाइड कर ली घर में, और उसकी छोटी बहन समझिए विटनेस है, बाप बिल्कुल गरीब है, गरीब फैमिली के लोग हैं, और उसको डबल बेडरूम मकान देते हैं। आज तक डबल बेडरूम मकान उसको नहीं मिला। रेप विक्टिम की बात कर रहा हूं, रेप विक्टिम, और उसके अगेंस्ट में नॉन मुस्लिम्स के बहरहाल रेप हुए। अच्छा करे आप, हेल्प करे, उनको डबल बेडरूम भी दिए, कंपनसेशंस भी दिए, सब दिए, मगर मुसलमान को समझिए, मुसलमान तो यतीम का पोट्टा है, दलालों के बीच में फंसा हुआ है मुसलमान, उसको तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। मैं मजीद समझिए कि एक ही बात नहीं बोलूंगा। उस्मानिया दवाखाना गिरा देता हूँ, वो ऐसा कर देता हूँ, मस्जिदें गिरा दी, सेक्रेटेरिएट की आपके बाप की जागीर जमीन पे नहीं बनी हुई थी, वक्फ बोर्ड की जमीन थी, मस्जिदों पे कोई सवाल नहीं करा, न वक्फ चेयरमैन को हया, न समझिए कि साहब होम मिनिस्टर को हया, कोई हया नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन थी, वो हुकूमत की जमीन नहीं थी जहां मसाजिद गिरा दिए गए। तो दिस इज द सिचुएशन। ये समझिए कि और बहुत कुछ गिना सकता हूं, बहुत वक्त समझिए कि हो रहा है। हाँ ठीक। तो ये है कि समझिए कि ये जो पोजीशन है, ये सारे मसाइल के बाद हमने एक 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के मुख्तलिफ सियासी जमातों के सामने पेश किया। 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, जिसमें खुली कुतुब शाह का मसला है, सेटविन का मसला था, हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स को सेव करने का मसला है, और फिर एजुकेशन का मसला, वुमेन्स डेवलपमेंट का मसला। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया है, जो हमारा पेश करदा है। हमने 2 महीने पहले वो चार्टर ऑफ डिमांड दिया। तो कांग्रेस के समझिए जो मरकज से उनके लोग आए हैं, जो यहाँ का इंचार्ज है, फिर मरकज से बड़ी टीम यहाँ पर है, एक सेंट्रल मिनिस्टर है, CWC मेंबर्स है, वो सारों से कई राउंड हमारे दफ्तर पे मुलाकात की। हमारा स्टैंड ये था कि हम किसी पार्टी के पास नहीं जाएंगे, किसी के दरवाजे पे हम नहीं जाएंगे, जरूरत है मुसलमानों की तो उनको आना पड़ेगा। तो बहरहाल समझिए कि ये एक रेगुलर डिस्कशन हुआ है, कई राउंड डिस्कशन हुआ है। कुछ पर्सनल समझिए उनके मरकज के लोग मेरे घर पर भी आकर बात करें, दफ्तर में भी कई बार आके बात करें। तो ये रेगुलर डिस्कशन के बाद तहरीक मुस्लिम शब्बान ने ये फैसला किया है कि हम रियासत में कांग्रेस की हम हिमायत करेंगे, मगर कांग्रेस की जो हिमायत हम कर रहे हैं, एक बात सुन लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की हिमायत नहीं की जा रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुसलमान असेंबली में ज्यादा से ज्यादा आए। तो बोधन में आमिर शकील लड़ रहा है, तो बोधन में कांग्रेस को हिमायत नहीं रहेंगी। ये इनकी हाई कमांड जो भी हमसे बात करनी है, उनको क्लैरिटी के साथ हमने ये बात की।
उसी तरह बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, चंद्रायन गुट्टा, गोशा महल, चार मीनार और आदिलाबाद। आदिलाबाद भी इस वजह से कि आदिलाबाद में गलत समझिए कि साहब कैंडिडेट को इन्होंने चूज किया। बहरहाल वो आरएसएस को बिलोंग करता है और बीजेपी से जंप लेकर आया, तो आदिलाबाद में इन्होंने समझिए कि जिस कैंडिडेट को दिया है कांग्रेस ने, देखिए हम किसी के बंदवा मजदूर और गुलाम नहीं, एक बात अच्छी तरह से याद है। नहीं, हम तायद कर रहे हैं, हम गलत को गलत कैसे बोलेंगे। मस्जिद गिर गई तो उन्हें रिग्रेट बोलते, थैंक यू वेरी मच बोल के पैरों पे जाके सरने रखने वाला मुश्ताक मलिक। पूरी जिंदगी मुश्ताक मलिक की जिंदगी इबारत है लड़ाई से और हक के लिए। कांग्रेस की हम तायद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कह रहा हूं कि आदिलाबाद की जो सीट है उस सीट से हम इत्तेफाक नहीं रखते। हम कांग्रेस को सपोर्ट उस सीट पे नहीं करेंगे। उसके साथ गोशा महल पर भी बहुत क्लियर समझिए कि बात मैंने कही, हम गोशा महल पे भी तुम्हारी तायद नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि गोशा महल पर बीआरएस ताकतवर है या कांग्रेस ताकतवर है। कौन समझिए कि साहब शाती में रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराएगा, जो गुस्ताख रसूल शाती में रसूल को जो हराएगा उसकी हम हिमायत करेंगे। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर। हम समझिए कि अपनी जात और मफाद के लिए कोई समझिए ऐलान नहीं कर रहे हैं। जो राजा सिंह को हराने के मौक़िफ़ में है, हम वहां समझिए इलेक्शन से 4 दिन पहले पूरा धावा मोलेंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो समझिए कि वो हमारी अपनी प्लानिंग है। मगर चाहे बीआरएस ताकतवर हो, हम उसी को समझिए कि साहब बीआरएस के हक में फिजा चलाएंगे। कोई जलसे नहीं करेंगे, कोई धूम धड़ाके नहीं करेंगे, कोई समझिए हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। हल्ला गुल्ला करना भी नहीं चाहिए। ऐसे मसाइल आपको स्ट्रेटेजिकल काम करना चाहिए। तो गोशा महल पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हम गोशा महल पर समझिए कि तायद इनकी नहीं कर रहे हैं और उससे हटके पूरी स्टेट में ये नई कांग्रेस है। एक और बात अहमियत की समझिए मैं कह रहा हूं, ये नई कांग्रेस है। साबिका बाबरी मस्जिद की शहादत वाली कांग्रेस होती तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। ये नई कांग्रेस है। नई कांग्रेस इन द सेंस ये कांग्रेस बहरहाल आरएसएस की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये समझिए कि लड़ाई लड़ रही है। और राहुल गांधी इस नई कांग्रेस के बहरहाल बड़े लीडर, बड़े चेहरे की हैसियत से सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हम आरएसएस से लड़ाई लड़ेंगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी से लड़ाई लड़ेंगे। तो इस वजह से हम ये नई कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। और रियासत के तमाम मुसलमानों से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। ये एक एक वोट में कोई तफरीहन या फिर जैसा तकिए कलाम है उस पर नहीं कह रहा हूं। आपको 80 to 90% पोलिंग अपने अपने इलाकों में कराना पड़ेगा। तो फिर ये समझिए कि साहब जो बैकडोर से आरएसएस की या समझिए कि बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं उनको शिकस्त होगा। आपको 80 to 90% पोल समझिए आपको कराना पड़ेगा। तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें, बल्कि पोलिंग के दिन खास तवज्जो दें और वो खास तवज्जो समझिए कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग की हो। खुद शहर हैदराबाद में जो पोलिंग टर्नआउट है वो बहुत कम है, 35%, 42% है। तो पोलिंग होनी चाहिए। पोलिंग एक हक है। ज्यादा से ज्यादा पोल समझिए कि करना चाहिए। जो इलाके मैंने कहा बोधन, बहादुरपुरा, याकूबपुरा, चंद्रायन गुट्टा, गोशा महल, चार मीनार, आदिलाबाद, ये इलाकों पर कांग्रेस को हमारी तायद नहीं रहेगी। वो देखिए मैं तो अभी आपको गोशा महल तो बोल दिए, दूसरे बाकी हम गौर कर रहे हैं, वहाँ उम्मीदवार की बुनियाद पे सपोर्ट करें। ठीक, देखा गया कि मजलिस ताकतवर है।
देखिए, कौन ताकतवर है कौन कमजोर है उससे कोई समझिए कि बहस से सोहत नहीं है। अब ताकतवर है उसके पीछे चले जाएंगे तो चाहिए फिरौन के पीछे। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और इंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, Z Now TV यही सच है।